Okay, welcome back. Everyone understood this? Chapter 7? सबका स्वागत है। सब लोग समझ गए ना अध्याय 7 में क्या था? Yes, no? हाँ ना? Yes. Okay. Okay, let's get into the next chapter. Chapter 8, Understand and Reason. और आइए हम अध्याय 8 में अब जाएंगे और उसको पढ़ेंगे, जो है समझे और तर्क करें। Now, this is my most favorite section in this entire course. इस पाठ्यक्रम में सबसे पसंदीदा भाग है मेरा। This has there's a lot of technical things in this, और इसमें बहुत सारे तकनीकी बातें हैं इसमें, but it's very powerful when we understand it. और ये बहुत सामर्थी होता है जब इसको हम समझते हैं। Okay, so this is taken from the example of the great apostle Paul और यह जो महान प्रेरित पौलुस थे in उनके Acts chapter 17. उनके उदाहरण से लिया गया है, जो प्रेरितों के काम अध्याय 17 से हुए। Now let's open to Acts chapter 17. आइए प्रेरितों के काम अध्याय 17 को खोलेंगे। We'll do the same thing what we did last class. और पिछले क्लास में जो हम लोगों ने किया था उसको यहाँ भी करेंगे। We'll not read the whole passage, हम पूरे पद गद को नहीं पढ़ेंगे, but what we will do is we will pick up portions from this chapter. कुछ भागों को उठाएंगे और उसको पढ़ेंगे। Acts chapter 17. प्रेरितों के काम अध्याय 17। Okay, so Acts chapter 17, Paul and his team, हम अगर प्रेरितों के काम 17 में देखते हैं कि पौल और उसका समूह they're in the second missionary journey. वे अपने दूसरे जो सेवकाई के यात्रा में थे। Right, this journey lasted for about 3 years. और यह जो यात्रा थी वह लगभग 3 साल चली। But this is the second missionary journey was the most impactful and powerful ministry that Paul ever did. यह दूसरा सेवकाई की यात्रा थी जो बहुत ही प्रभावशाली प्रभावित सेवकाई थी जो पौल ने कभी किया था। He preached in major countries. और उन्होंने बहुत बड़े देशों में प्रार्थना प्रचार किया। Philippi, फिलिपी में, Thessalonica, थेसलोनिका में, Athens, Corinth, Ephesus. एथेंस में, कोरिन्थ में, एफेसस में। Right? So now what has happened is Paul is in Thessalonica. और यहाँ पे पौलुस जो है वो थेसलोनिकियों में है। This is a city in Asia Minor. और एशिया के देशों में यह एक देश है। Right? So from here, यहाँ से the persecution had started. सताव शुरू हो गया। So they wanted to kill Apostle Paul. और वे पौलुस प्रेरित को मारना चाहते हैं। So what they said is, Paul, you go ahead. और वो कहते हैं कि पौलुस तुम आगे जाओ। And Paul's team remained in Philippi. और फिलिपियों में पौलुस का जो दल था वो रह गया। So Paul goes alone to a place called Corinth, Athens. और एथेंस में की नगरी में पौलुस अकेले जाते हैं। Now, just a little bit of background about what Athens is. और थोड़ा सा आपको पृष्ठभूमि देते हैं कि एथेंस क्या है। When we read the Bible, we must understand what is the background, what is happening behind. और जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपको यह समझना चाहिए कि पीछे क्या हो रहा है, इसकी पृष्ठभूमि विषय वस्तु क्या है। Right? See, Jew and Samaritan, now we understood, no? देखिए यहूदी और सामरी के बीच में क्या बात थी, हम तो अब समझ गए ना। Now if we read every time we'll remember, oh, Jew and Samaritan, they don't like each other. अब जब भी हम इसको पढ़ेंगे हम लोग समझेंगे नहीं, यहूदी और सामरी अब एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। But it's not mentioned in the Bible, but we understood it through history. देखिए हालांकि ये बाइबल में बताया नहीं गया है, लेकिन हम समझ पाते हैं जब उसको हम पढ़ते हैं। So here in Paul goes into Athens. और यहाँ पर पौलुस एथेंस को जाते हैं। Now Athens is a place where everyone are intellectual people, very knowledgeable people. और यहाँ पर हम जब एथेंस को देखते हैं तो यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति बहुत बुद्धिमान ज्ञानी व्यक्ति है। See the difference now. In Jerusalem, देखिए जो अंतर है उसको देखिए। जेरूसलम में fisherman, tax collector, carpenter, all बढ़ई simple people. बढ़ई कर चुंगी लेने वाले, मछुआरे, साधारण लोग। But now he's gone to another city. और अभी एक अलग शहर में गए हैं। And here everyone are intellectuals. यहाँ पे सारे व्यक्ति बहुत बुद्धिमानी है। So Paul goes in. और पौल जाते हैं वहां। And he begins to look at the place. और फिर वह उस जगह को देखना शुरू करते हैं। Athens had a goddess named Athena.
अथीना नाम की एथेंस में एक देवी थी। But there were two kinds, like how for India, in India we have Hinduism, we have so many kinds or different types of Hindus. तो दो प्रकार के, जैसे कि भारत का अगर उदाहरण लेंगे तो अलग अलग प्रकार के देवी देवताएं हैं और अलग अलग प्रकार के देवताएं हैं। Even Christianity, we have different kinds, groups of people. देखिए ईसाई मसीहत में भी, ईसाई में भी ईसाई में भी बहुत तरह के समुदाय के लोग होते हैं। ईसाई में भी We have Baptist, Methodist, Pentecost, जो बैप्टिस्ट, मेथोडिस्ट और पेंटिकॉस्ट, ये सारे होते हैं, different groups. अलग अलग समुदाय। The same way, there were two kinds of people in Athens. और उसी प्रकार दो प्रकार के लोग भी थे, समूह भी था एथेंस में। Now, you don't have to know the names, but I'll just say it. One is Epicurean, one is Stoicism. और एक था एपिक्यूरियन और दूसरा था स्टोइसिज्म। Now, what is their belief system? तो उनका जो विश्वास करने का प्रणाली था वो क्या था? One group believed that everything happened by chance. और एक दल ऐसा विश्वास करते थे कि हर एक जो कुछ भी हुआ है वह ऐसे यूं ही हो गया है। That means God didn't create us. इसका मतलब कि परमेश्वर ने हमारी रचना नहीं की, Suddenly, some world came into being. और अचानक कुछ ऐसा हुआ कि संसार अस्तित्व में आ गया। And then man will live, man will die. And after death, that's the end. मनुष्य जिएगा, मनुष्य मरेगा और मरने के बाद वह खत्म होगा और कोई आगे बात They नहीं। believe that there's a God, but the God is a separate world. We are in a separate world. वो विश्वास करते थे कि हाँ ईश्वर तो है, लेकिन ईश्वर एक दूसरे संसार के हैं और हम दूसरे संसार के हैं। So because of that, we can just have pleasure and do whatever we want in life. Nothing is wrong. और इसी के चलते जो भी मन भावनी बातें हैं वे हम कर सकते हैं अपने जीवन में, और इसमें कोई गलती नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। Right? So that's one group of people. तो यह एक प्रकार का समूह का लोग समूह Then के there's लोग। another group, the Stoics. और जो स्टोइक्स थे, जो दूसरा समूह है, They believe that everything was God. वे विश्वास करते थे कि सब कुछ परमेश्वरीय है या ईश्वरीय है। And you and I as human beings, we have, God is a fire. और आप और हम जैसे एक मानव है, जैसे कि परमेश्वर एक अग्नि के समान है, And we are all sparks. और हम उसकी चिंगारी हैं। And then finally, when we die, our spark will go and get attached to the main fire. और जब हम मर जाएंगे, हमारे मरणोपरांत हमारी जो चिंगारी है वह आग में जाके मिल जाएगी। And one day the world will just become pieces. और एक दिन ऐसा होगा कि यह संसार टुकड़ों में बट जाएगा। So it is two different worldviews. और यहाँ पे दो सांसारिक चिंता धारणा को हम देखते हैं। One is God is away, another और- country, another place. और एक है कि एक अलग जगह है जिसमें परमेश्वर रहते हैं, एक दूसरा देश है। And another belief is God is a big fire. We are just sparks. Once we die, we will join that fire. और दूसरा है कि परमेश्वर एक चिंगारी, हम परमेश्वर एक बड़े आग के समान है, और जब हम मरेंगे तो वह आग में जाके समा जाएंगे। So now Paul is going to this place. अब पौलुस इस जगह में जा रहे हैं। Okay. Now let's read Acts chapter 17, 1 onwards, and I'll stop you in between. Anyone can read. कोई पढ़ सकता है प्रेरितों के काम 17 अध्याय का 1 से लेकर, मैं आपको बीच बीच में रोकता रहूंगा। 17 का पहला अध्याय से, पहला वचन से। Let's read 17, 16 and 17 you read. अच्छा, प्रेरितों के काम 17 अध्याय का 16 और 17 वचन पढ़िए। जब पौलुस एथेंस में उनकी बाट जो रहा था, तो नगर को मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया, और अतः वह आराधनालय में यहूदियों और भक्तों से और चौक में जो लोग उससे मिलते थे उनसे हर दिन वाद विवाद करता रहता था। Yeah. Now see what's happening. देखिए क्या हो रहा है यहाँ। Paul went there. पौलुस वहां पे गया, His heart was distressed. उसका जो हृदय था वो काफी विचलित हुआ, So he went and began to speak about Jesus to people. और जाके वह लोगों से यीशु के बारे में बात करना शुरू किया। There were some Jews, there were some Greeks. कुछ यहूदी थे, कुछ यूनानी थे। Now when they heard this, जब वे सुने इसे, there was a mixed reaction. वहां पे बहुत मिश्र जो प्रतिक्रिया होती है वो होती थी, Now, भिन्न भिन्न प्रतिक्रिया हुई। just think of this. They are saying, what is this person saying? और वो आप सोचिए इसके बारे में, वो कह रहे थे कि यह व्यक्ति क्या कह रहा है। That we are all sinful. हम लोग सब पापी हैं,
But Jesus, a man, came into this world, the Son of God. यीशु एक पुरुष जो इस संसार में आया, जो परमेश्वर का संतान था, He died on the cross. वह क्रूस पे मरा He rose again from the dead. और वह मरणोपरांत And फिर से when we जी उठा believe in Him, और फिर लोगों ने उसको विश्वास किया। we will have everlasting जब हम life. विश्वास करेंगे तो हम अनंत काल का जीवन प्राप्त करेंगे। Everyone are listening to this. सारे लोग इसको सुन रहे थे। Now, in their mind, they're thinking, what is this person saying? उनके मनों में वो सोच रहे हैं कि यह व्यक्ति क्या बात कर रहा So they है। had three different reactions. तो उनका तीन अलग अलग प्रतिक्रिया थे। One group of people said, पहले समूह के लोग कहे you are foolish, you're talking foolishness. तुम मूर्ख हो और तुम मूर्खता वाली बात कर रहे हो। Second group of people said, forget him. We don't want to know anything about what he's saying. दूसरे समूह के लोग कहे भूल जाओ, हम जानना नहीं चाहते कि तुम क्या कहना चाहते हो। Third group of people said, जो तीसरे समूह के लोग थे, you're saying some interesting things, Paul. तुम कुछ दिलचस्प बात तो कर रहे हो पौलुस। Now we are all intellectual people. We like to learn new things. हम लोग बहुत बुद्धिमान लोग हैं। हम लोग नए नए बातों को सीखना हमको पसंद करते हैं। You do one thing. तुम एक काम करो, Tomorrow कल we have one main hall. हमारा जो एक बड़ा जगह है, बड़ा हॉल है, It's in the center of the city. वह इस शहर के केंद्र में स्थित है। You come there and you preach what you want to preach, you preach. और उस बड़े सभागार में आकर तुम जो प्रचार करना चाहते हो आके करो। So the next day Paul comes. और दूसरे दिन पौलुस जाता है। Verse 22. Let's read. 22 वचन पढ़ेंगे। 22 onwards. Read. 22 वचन के बाद से पढ़ेंगे। 22 वचन से पढ़िए। थोड़ा जल्दी पढ़िए भैया और बहनों। तब पौलुस ने अरियुपगुस के बीच में खड़े होकर कहा, हे एथेंस के लोगों, मैं देखता हूँ कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो, क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था, अनजाने ईश्वर के लिए, इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूजते हो। मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल्य से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे। कदाचित उसने टटोल कर पाए तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंशज हैं। Yes, let's stop there. Now, जी धन्यवाद। Paul stood up and he said all of this. पौल खड़ा हुआ और ये सारी बातों को कहा। He preaches the gospel. वह सुसमाचार को प्रचार कर रहा है। And towards the end, और अंत में verse 32 says, when they heard about the resurrection of the dead, और जब 32 में ऐसा लिखा है कि जब उसने जो मरे हुए से जी उठने की बात को सुना, some people criticized him. किसी लोगों ने उसका वाद विवाद किया। Some people said we want to hear more. और कुछ लोगों ने कहा कि हम लोग और सुनना चाहते हैं। And this is the best part. और यह एक बहुत उत्तम भाग है। Verse 34. 34 वचन। A few men became followers of Paul and became believers. और उनमें से कई मनुष्य उनके साथ मिल गए और विश्वास किया। Look at that. जी सही है। Towards the end, अंत में some people criticized. किसी लोगों ने तो वाद विवाद किया। Some people said, they made fun of Paul. और कितने लोगों ने तो उसका हंसी उड़ाई, उपहास किया। Some people said, we want to hear you again. कुछ लोगों ने कहा कि मैं तुमको और सुनना चाहता हूँ। But in the end of that, some people believed in Jesus. और उसके अंत के दौरान कुछ लोगों ने यीशु पर विश्वास किया।
and a church was planted there. और उसी जगह कलीसिया का रोपण हुआ। What did Paul do? पौलुस ने क्या किया? We just now read. Did he say, I was going on the horse, और वो उसने कहा कि नहीं, मैं घोड़े पर जा रहा था, then suddenly one light came from heaven, अचानक एक प्रकाश आया स्वर्ग से, and then I met Jesus. और फिर मैं यीशु से मिला, After meeting Jesus, he said, you go and be a light to the Gentiles. और वह कहा कि जाओ अन्य जाति के पास प्रकाश बन के जाओ। In case you don't know me, I did many miracles. तुम अगर नहीं जानते मुझे, तो मैंने बहुत अद्भुत काम किए हैं, चमत्कार किए हैं। People call me apostle. लोग मुझे प्रेरित के नाम से बुलाते हैं। I was commander of the temple guard. और जो टेंपल की सुरक्षा देने वाला था, उसका मैं कमांडर था। I'm a Pharisee of the Pharisees. और मैं फरीसियों का फरीसी हूँ। I'm a great man before. मैं पहले बहुत बड़ा एक आदमी था। Did he say all that? क्या इसने ऐसा कहा? Ah, yeah, no. हाँ या ना, यस और नो? नहीं। Did he say all that? क्या उसने ऐसा कहा? What did he do? उसने क्या कहा? Presented the gospel. उसने सुसमाचार का प्रदर्शन किया, But प्रस्तुत किया। there were three responses. तीन प्रकार के उत्तर थे। What does it teach us? वो क्या हमें सिखाता है? We will get the same response even now. अभी भी हमको उस प्रकार की ही प्रतिक्रिया मिलेगी। If you are speaking to a Hindu or a Muslim, अगर आप कोई हिंदू या मुस्लिम से बात कर रहे हैं, you're presenting the gospel, आप सुसमाचार को प्रस्तुत कर रहे हैं, some will laugh at you and mock you. कुछ लोग आप पर हंसेंगे और आपका मजाक उड़ाएंगे, Some will say, tell me some more. और कुछ कहेंगे थोड़ा और बताइए हमें, Some will become believers. और कुछ विश्वासी बन जाए। Same response. वही प्रकार की प्रतिक्रिया यहाँ पर। So here, let's look at a few things what the apostle Paul did. और आइए कुछ देखेंगे कि प्रेरित पौलुस ने क्या किया। In chapter 17, verse 22, he starts off his speech. और 17 अध्याय के 22 वचन में वह अपना भाषण देना शुरू करता है। He says, you are very religious. I see that you are very religious. वह कहता है कि मैं देख पा रहा हूं कि आप लोग बड़े धार्मिक हैं। That means what? उसका मतलब क्या? He realized that they are looking for God. They're searching for God. तो वह यह जान पाया कि वे लोग जो परमेश्वर उसकी तलाश में है, उनकी खोज में है। They were searching for a God. वे एक परमेश्वर के तलाश में थे। There was a temple, there was a statue, it says to an unknown God. और वहां पे एक मंदिर था, वहां पे एक मूर्ति थी, जहां वहां पे लिखा हुआ था उस अनजाने परमेश्वर के लिए, देवता के लिए। No, Apostle Paul didn't go and say, what your people are, you don't have enough, you can't understand. पौलुस जाके ऐसा नहीं कहा कि तुम लोग को समझ नहीं है, You are great people, intellectual, you can't understand this. तुम एक बहुत बड़े लोग हो, बड़े बुद्धिमानी लोग हो, तुम इसको नहीं समझते। He didn't condemn them, उसको उन्होंने दोषित नहीं किया, but he appreciated them. उसको उसने सराहा। He said, I see that you are very religious. हम देख पा रहा हूँ कि आप लोग सब बड़े धार्मिक लोग हैं। I see a temple, it's saying to an unknown God. मैं एक मंदिर देख रहा हूँ और वहाँ पे लिखा है कि अनजाने परमेश्वर के लिए, And he began to preach to them. अनजाने ईश्वर के लिए, और वह प्रचार करना शुरू किया। So recognize where people are. आप पहचानिए कि लोग कहाँ हैं। Now, whenever I see people, especially here, very religious people, जब भी मैं देखता हूँ यहाँ पे, विशेष रूप से यहाँ पे बहुत धार्मिक लोग, 50% of the battle is won. तो 50% आपका युद्ध वहीं पे जीता जा चुका। Why? Because at least they believe in God. No, क्योंकि वो किसी ईश्वर पर तो विश्वास कर रहे हैं ना। they believe that about sin. They know about sin. वे जानते हैं पाप के बारे में, वो पाप को जानते हैं। The big headache is when people say there is no God. जब सबसे बड़ा सरदर्द है कि जब लोग कहते हैं कि कोई परमेश्वर ही नहीं है, And we have to go back explaining, फिर आपको वापस जाके फिर समझाना पड़ता है। देखो, but religious people, you can appreciate them. देखिए, अब जो धार्मिक लोग हैं ना, उनको आप सराह सकते हैं। I really appreciate, Muslims who on Friday, और शुक्रवार के समय मुस्लिम को मैं बहुत उनको सराहता हूँ। the sacrifices that they make. आप जानते हैं कितने प्रकार के बलिदान वो बनाते They हैं। close the business अपना पूरा व्यवसाय बंद कर देते हैं, and they go on Friday for prayers. और वो प्रार्थना के लिए शुक्रवार को जाते हैं, जुम्मा को जाते हैं। It doesn't matter what business you're in, they'll close it. आप, यह कोई बात नहीं है कि क्या व्यवसाय में है, उसको वो बंद रखते हैं। Very religious people. बहुत धार्मिक लोग। You think as Christians we can fast like them for 40 days? Impossible. आप सोचते हैं कि
40 दिन का उपवास उसके जैसा हम कर सकते हैं? असंभव बात है। You know why? क्यों जानते हैं They आप? don't swallow their spit. वो अपना थूक को भी नहीं घोटते हैं They don't drink water from morning to evening. और सुबह से लेकर शाम तक वो पानी नहीं पीते हैं। It's not easy. बहुत आसान नहीं है But ये। what do we do? हम क्या करते हैं? What you're believing in. अरे तुम क्या विश्वास कर रहे हो? That's a wrong thing to do. ये गलत बात है करने की। Appreciate them first. Hey. उनको पहले आप सराहिए, कहिए वाह। And you know, during the 40 days of fasting, they don't sit at home and close the door and pray the whole day under the fan. और 40 दिनों का उपवास के दौरान वो जाके घर में, अब वो जाके घर में पंखे के नीचे प्रार्थना नहीं करते। They do hard work, hard labor. वे बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। Sometimes I think, will they not die? हम कभी सोचते हैं कि यार ये मर नहीं गए, मर It's क्यों not नहीं, easy. मर कैसे नहीं गए? Of course, they wake up early, they eat before that, but it's not easy. ये आसान नहीं है। वो बहुत सुबह उठते हैं, उससे पहले वो अपना भोजन लेते हैं। यह आसान नहीं है। So whenever this fasting Ramzan comes, I always appreciate my friends. और जब भी ये रमजान आता है, उपवास रोजा आता है, मैं अपने दोस्तों को बहुत सराहता हूँ। I say, hey, I should learn from you how to fast. मैं कहता हूँ अरे मैं तो आपसे सीखना चाहिए कि आप कैसे उपवास करते हैं। The next question they ask, even you have to fast? तो वो पूछते हैं कि क्या तुमको भी उपवास करना पड़ता है? Yes, we have to fast and pray. God has told us to fast and pray. तो हम दिखाते हैं कि हाँ, परमेश्वर ने हमें सिखाया, कहा है कि हम उपवास करके प्रार्थना करें। Instead of, mocking and making fun of them, you can appreciate them. आप उनका मजाक या ठट्ठा उड़ाने के बजाय आप उसको सराहा सकते हैं, उनकी सराहना कर सकते हैं। Recognize their spiritual quest, that they want God. आप उनके जो आत्मिक भूख है उसको आप पहचानिए कि वे भी परमेश्वर की तलाश में हैं। Second point, दूसरी बात, the Apostle Paul used something that they had and related the gospel to that. और पौलुस प्रेरित ने ऐसे बातों को पहचाना जो उनके पास था और फिर उसने सुसमाचार से जोड़ा या उसको संबंधित किया। He used it as a starting point. वो उसको एक शुरुआत के बिंदु से उसको लिया। He said, see, when the Bible says in verse 24, 24 वचन में बाइबल बताती है, verse 22, then Paul stood up and said, man, I see that you are religious because I see an idol saying to an unknown God. और पौलुस खड़ा होता कहता है कि हर बात में देवताओं को मैं देखता हूं कि तुम हर बात में देवताओं को बड़े मानने वाले हो, और ऐसा मंदिर भी देखता हूं जहां पर अनजाने ईश्वर के लिए भी लिखा है। He uses something that they have as a starting point. और वह उस बात का इस्तेमाल करता है जो उनके पास था उस शुरुआत करने की जगह को लेकर। So when you and I are ministering to people, you can use something that they have or they are doing to present the gospel. आप और जब हम लोगों की सेवकाई कर सकते हैं, हम उस बात का इस्तेमाल कर सकते हैं जो उनके पास है उसको लेकर शुरुआत करने के लिए। So for example, जैसे उदाहरण के रूप में I always do this when मैं हमेशा ऐसा करता हूँ, when I talk to a Muslim, जब मैं एक मुस्लिम से बात करता हूँ, I very rarely talk about the New Testament मैं बहुत कम ही नए नियम के बारे में बात करता हूँ, because they'll get upset. वो दुखी हो जाते हैं। They'll say, how can it be Jesus becoming God? वो कहते हैं कि कैसे यीशु परमेश्वर बन गए। So I always start with the Old Testament. मैं हमेशा पुराने नियम से शुरू करता हूँ। So they believe in the 5 books: Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. और वह 5 किताबों में उसका इस्तेमाल कर, जैसे कि उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था विवरण और लास्ट में क्या है, गिनती। Yeah, the Torah, the 5 books. जो 5 तोड़ा है, 5 किताब So है, I always talk about that. मैं हमेशा उसके बारे में बात I करता talk हूँ। about Moses, Abraham. मैं मूसा के बारे में बात करता हूँ, अब्राहम के बारे में बात करता हूँ। Right? I always say, hey, why do you celebrate Bakrid? मैं हमेशा पूछता हूँ कि तुम क्यों बकरीद मनाते हो? They start telling the whole story. और फिर वो पूरा कहानी बताना शुरू करते हैं। God told Abraham परमेश्वर ने अब्राहम से कहा to sacrifice your son. उसके बेटे को बलिदान करने के लिए। So Abraham took his son तो अब्राहम ने अपने बेटे को लिया and went up the mountain और वह पहाड़ के ऊपर गया and was going to sacrifice. और वह बलिदान करने पर था। But only thing they don't believe it's Isaac, they believe it's Ishmael. और वह एक ही बात है जो विश्वास नहीं करते कि वह इसहाक को नहीं मानते, वो इस्माइल को मानते।
So Abraham took him there और अब्राहम ने उसको लेके गया वहां पर, before he could kill. और उसको मारने से पहले God sent a ram, परमेश्वर ने एक मेमना को भेजा, and God saved his son of Abraham. और फिर अब्राहम के पुत्र को परमेश्वर And ने so बचा we लिया, celebrate that by cutting a goat. और उसको बनाते हैं अब एक बकरी को काटने से, So that's why we call it Bakrid. इसलिए इसको बकरीद कहते हैं। And you listen to the whole story, अब पूरे कहानी को सुनता हो, and then it gives you a starting point. और फिर वहां से वो आपको एक शुरुआत करने का जगह देता है। Really? हाँ, सचमुच। So we both believe in the first 5 books. देखिए, हम कहते हैं कि हम दोनों पहले जो 5 किताबें उसको विश्वास करते हैं। Let's do some research. आइए हम कुछ जांच पड़ताल करेंगे। Are you sure it's Ishmael and not Isaac? क्या आप निश्चित है कि यह इस्माइल था, आइजक नहीं था, Now इसहाक नहीं था? what are you doing? अब आप क्या कर रहे हैं? You're opening up a discussion. तो फिर आप एक वार्तालाप की शुरुआत कर रहे हैं, एक बातचीत की शुरुआत कर रहे हैं। So you use that as a starting point. तो आप उसको इस्तेमाल करते हैं एक शुरुआत करने की जगह से लेकर। When you talk about maybe to Hindus, we'll learn more about it later. हम लोग और इसके बारे में सीखेंगे बाद में। जब आप किसी हिंदू भाई बहन के बारे में बात करते हैं, Pick up sin. तो आप पाप को लीजिए। They know that everything they do is, about, payment of sins. और वो जानते हैं कि जो भी वो करते हैं वह पाप का मूल्य चुकाना है। Pick up life after death. और जीवन के बाद फिर जीवन, मरणोपरांत जीवन। Right? So these are things you use that starting point. तो आप उन सारे शुरुआती चीजों को, बिंदुओं को लीजिए। Thirdly, तीसरी बात, in Acts 17:28, और एक प्रेरितों का काम 17 का 28 वचन the में, Apostle Paul does something brilliant. और फिर कुछ बहुत ही बुद्धिमता की काम करते हैं He पौलुस प्रेरित। says in verse 28, as some of your own poets have said, we are his offsprings. क्योंकि हम उसी से जीवित रहते हैं और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं, जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है कि हम तो उसी के वंश भी हैं। So Paul is letting them know that, hey, I read about you also, I know about you. और वो कहता है, पौलुस प्रेरित उनको बताता है कि मैं तुम्हारे में जानता हूं, मैंने तुम्हारे बारे में पढ़ा है, I know what you believe in. मैं जानता हूं कि तुम किस पर विश्वास करते हो। Your own prophets have said, आपके जो we are his offspring. आपके जो भविष्यवाणी है, नबी है, भविष्यवक्ता वो नबी है, उन्होंने ही कहा है कि हम उसके वंशज हैं। So Paul showed them that he was interested to know about their religion as well. और पौलुस दिखाया कि वो भी दिलचस्पी लेता था उनके धर्म के बारे में जानने के लिए। So if there are times, many of you maybe from different faiths, you've come to know the Lord. और आप में से कई हैं जो अलग अलग विश्वास से आए होंगे, आप अभी परमेश्वर को जान पाए हैं। So use your previous life, your previous experience. आप अपना जो पहले का जीवन है, पहले का अनुभव है, उसको आप इस्तेमाल कीजिए And apply it while preaching the gospel. और सुसमाचार का प्रचार करने के दौरान उसको आप लागू कीजिए। But if you have always been in a Christian family like me, और अगर आप हमेशा एक ईसाई परिवार से आते हैं जैसा कि मैं, then you will have to read about it, try to understand at least a little bit. तो आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। What is it that they believe in? वो क्या जो है, वो क्या बात है जिस पर वो विश्वास करते हैं। Right? Nowadays, if you go to the internet, you'll get all the details. और Just read. आजकल अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे तो सारे विस्तार आपको प्राप्त होंगे, आप पढ़िए। Right. I had a friend who's a Jehovah Witness. तो मेरा एक दोस्त है जो यहोवा विटनेस समूह से आता है, I didn't know too much about it. मैं उसके बारे में नहीं जानता, But if I have to speak to him, I need to know about Jehovah Witness. तो अगर मैं उससे बात करना है तो मुझको यहोवा विटनेस के बारे में जानना पड़ेगा, What do they believe in? वो किस पर विश्वास करते So हैं। I went back and started to read. और फिर मैं वापस गया और पढ़ना शुरू किया, Got a little bit of understanding. और फिर मैं थोड़ा सा समझ में आया। So when I talked to him, जब मैं उससे बात किया, I know what he's thinking. मैं जानता हूं कि वो क्या सोच रहा है, I know what's in his mind. मैं जानता हूं कि उसके मन में क्या है। So it helps us to present the gospel the right way. और वो मदद करता है, मददगार साबित होता है कि किस प्रकार हम सुसमाचार उसको प्रस्तुत करें। Yes, everyone understood? हाँ या ना, समझ गए आप Yes. सब? So many of you from North India, if you meet Sikhs, आप में से कई हैं जो उत्तर भारत से हैं, अगर आप सिख लोगों से मिलते हैं, don't just go and say, Jesus loves you. आप जाके ऐसे नहीं कहिए कि यीशु आपसे प्रेम करते हैं। He'll say, even I love you. वो भी कहते हैं कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ।
That doesn't work that way. वैसे काम नहीं करता। You need to have some understanding of Sikhism. आपको सिखिज्म के बारे में थोड़ा सा ज्ञान या समझ होना जरूरी है। Then you go and try to share the gospel. तब जाके आप कोशिश कीजिए और सुसमाचार को साझा करने की कोशिश Now कीजिए। remember, this is the intellectual approach. Think देखिए, in the mind. देखिए ये जो बात है ये आपका बौद्धिक तरीका है, बुद्धि की तरीका है सोचने का। Right? Yesterday we talked about the prayer approach, the power approach, healing. That's also there. हम लोगों ने प्रार्थना का तरीका, चंगाई का तरीका, सामर्थ का तरीका, ये कल हम लोगों ने सीखा। Paul has done that before. पौलुस ने पहले कर दिया था इसे। Imagine if Paul had said, okay, everyone who needs healing, come and stand. आप कल्पना कीजिए कि पौलुस जाकर वहां पे कहता कि अरे जिसको भी चंगाई की जरूरत है यहाँ पे आके खड़े हो जाइए। That was not the setting. वह उस प्रकार की बनावट वहां पे नहीं थी। The setting there was he had to prove to them वह जो व्यवस्था वहां पे थी कि उसको यहाँ पे वह उसको साबित करना है who Jesus was. कि यीशु कौन था। Everyone understood? आप समझ रहे हैं ना? Right? So you see what works for you. आप देखिए कि आपके लिए क्या कारगर साबित होता है। If you feel that, you may say, Pastor, in the village, nobody knows, nobody knows all these high things. आप कह सकते हैं कि पास्टर गांव में तो कोई नहीं जानता इस बड़े बड़े बातों को, They only know, healing, all of this. और वे सिर्फ चंगाई के बारे में जानते हैं, इन बातों को जानते हैं। Then you go with that. तो आप उसके साथ जाइए। End result is what? जो आपका अंत में जो परिणाम होना चाहिए वो क्या होना The चाहिए person becomes a believer. कि व्यक्ति एक विश्वासी बन जाए। So it can be any way. तो कोई भी तरीका Now, हो। in a city like here, Bangalore, अब जैसे बेंगलोर में के शहर में कि we have to know these things. हमको इस सारी बातों को जानना जरूरी है। We have to know in detail a few things that's happening around us if we have to minister. हमको जो हमारे इर्द गिर्द जो बातें हो रही हैं उसको जानना जरूरी है अगर हम सेवकाई करना चाहते हैं तो। Nowadays, with all this, homosexuality, gay and lesbian, और होमोसेक्सुअलिटी, गे, लेस्बियन के को लेकर there are many questions. बहुत सारे प्रश्न हैं। We must learn it. हमको उसको सीखना जरूरी We must है, read it उसको समझना जरूरी so है, that we can give a good defense for the gospel. ताकि हम जाकर हम उस सुसमाचार को हम बांट सके और उसको हम डिफेंस कर पाए। This may not be there in villages where you are staying or villages and towns where you're staying. यह बात शायद आपके गांव या शहरों में जहाँ पे आप रहते हैं वहां ना हो। So what is the outcome? तो जो उसका परिणाम है वो क्या है? Paul used intellectual पौलुस ने अपना जो बुद्धि का इस्तेमाल किया and he was able to minister to people. तब जाके वह योग्य हो सका कि लोगों को सेवकाई A करे। local church was established in that place. और एक जो स्थानीय कलीसिया उसका रोपण हुआ उस जगह पे। One message. एक संदेश। People who believed in this, the God is fire, all of that, in one message they changed their lives. जो लोग विश्वास करते थे कि परमेश्वर आग है, एक ही संदेश में उन्होंने अपना जीवन बदल दिया। What they believed for 30, 40 years, 100 years, 200 years, they let it go. Just one message of a person they saw once. जो व्यक्ति 30, 40, 50, 100 साल से एक ही चीज को विश्वास करते थे, जिसको उन्होंने एक ही बार मिला, उसके एक ही संदेश से उन्होंने अपना जीवन बदल दिया। How is that possible? ये कैसे संभव है? That's possible because the gospel is the power of God. यह इसलिए संभव है कि जो सुसमाचार है वो परमेश्वर का सामर्थ है। A church was planted there. एक कलीसिया का स्थापना हुआ वहां। From there, Paul went to Corinth. और फिर कुरिन्थियों को गया पौलुस वहां से। And he ministered there. उसने वहां पे सेवकाई की। There also he planted a church. और वहां पे भी उसने एक कलीसिया का स्थापना किया। Right? So Paul ministered. तो पौलुस सेवकाई किया। How did some additional details on how he ministered? और कुछ और भी बातें और भी विस्तार कि कैसे उसने सेवकाई की। He preached Jesus Christ and the work of the cross. उसने यीशु मसीह और क्रूस पर कार्य के बारे में प्रचार किया। Secondly, he understood them. और दूसरी बात कि वह उनको समझ गया। He reasoned with them. और उनके साथ उसने तर्क किया। And then he preached the gospel to them. और फिर जाके उसने सुसमाचार का प्रचार किया। Thirdly, तीसरी बात, he did not get into meaningless arguments. वह बिना किसी मतलब के वाद विवाद में नहीं पड़ा। Some of them, they didn't believe. कुछ लोग जानते हैं कि उन्होंने विश्वास नहीं किया। But Paul was not interested in that after that.
तो पौलुस उनमें दिलचस्पी नहीं लिया। उसके बाद There were 3-4 people who believed in Jesus, जो 3-4 लोग थे जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया, and he used them to plant the church in और Athens. और फिर एथेंस में उसने उनको उपयोग किया कि वे कलीसिया का रोपण करें। He didn't get into meaningless arguments. He Wow. didn't say, "Come back, I'll talk to you one more time. Let's have a debate one more time." उसने ऐसा नहीं कहा कि चलो वापस आओ, एक बार फिर से तुमसे बात करूंगा, चलो एक वाद विवाद करते हैं, इसके ऊपर चर्चा करते हैं, ऐसा उसने नहीं कहा। Finished. He shared the gospel. They became believers. Church was planted. He moved on. उसने क्या किया, उसने सुसमाचार का प्रचार किया, उसको साझा किया, लोग विश्वासी बने, कलीसिया का स्थापना किया और वो आगे बढ़ गया। Okay? ठीक है, Everyone understood? सब समझे? Okay, so use your own setting and be able to minister to people. देखिए, तो आपका जो बनावट है, आपका जो व्यवस्था है, उस जगह पर उसका इस्तेमाल कीजिए कि आप लोगों को सेवकाई कर पाए। Okay, we'll stop here. We'll continue from the next point tomorrow onwards. हम रोकेंगे यहाँ पे, और जो कल जो नेक्स्ट जो अगला भाग है उसको लेकर हम शुरुआत करेंगे। So if you can, go back and read Acts chapter 17. अगर आप कर सकते हैं तो आप जाकर प्रेरितों के काम अध्याय 17 को पढ़िए, Try to understand. उसको समझने की कोशिश कीजिए। Right, so we'll close now. Let's just pray and close, and we'll meet tomorrow. हम आज का समाप्ति करेंगे और प्रार्थना करेंगे और कल फिर मिलेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपका हम धन्यवाद करते हैं कि आपने इतना सुनहरा मौका दिया। पिता परमेश्वर, हम सबको इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आपने इस पूरे समय में आपने हमें सीखने का मौका दिया और इतना सौभाग्य दिया कि हम यहाँ बैठ के आपकी अद्भुत बातों को सीखने पाए। इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस मौके के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जो भी बातें हम लोगों ने सीखी आपके दास के द्वारा पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में वह जड़ पकड़ने पाए, हम सीखने पाए, और प्रभु जी आपकी पवित्र आत्मा अगुवाई करे उसको और समझने के लिए और उसका इस्तेमाल करने के लिए आने वाले दिनों में। पिता परमेश्वर, उस बातों को आप कर रहे हैं अभी से, इसके लिए आपका हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आने वाले घड़ी का भाग आपके हाथ में सौंपते हैं, आने वाले क्लास को भी आपके हाथ में सौंपते हैं। हमें आप तैयार कीजिए और मदद कीजिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। All right, I'll see you tomorrow. मैं आपको कल स्मृति करेंगे। धन्यवाद।